All through the night, Lencho thought only of his one hope, the help of the God. पूरी रात लेंचो बस एक ही आशा उसके दिल में थी, and that was the help of God. उसको he has a firm faith in God and thought that God will definitely help him. Whose eyes, as he had been instructed, see everything. उसको जैसे बचपन से उसने सुना था कि जब कोई हेल्प नहीं करता तो भगवान सबकी हेल्प करता है. उसको लगा भगवान मेरी ज़रूर हेल्प करेगा. इवन व्हाट इज़ डीप इन वंस कॉन्शियस, सबके कॉन्शियस में, सबकी एक इनर सेंस में, जो हमें हमारी जो इनर सेंस होती है हमें बताती है कि व्हाट इज़ राइट एंड व्हाट इज़ रॉन्ग. ऑलवेज वी हैव इन आवर कॉन्शियस कि गॉड इज़ देयर, ही इज़ गोइंग टू सी अस. इवन डूइंग समथिंग रॉन्ग, वी फील दैट ही इज़ वॉचिंग अस. So the same thing was with Lencho. His inner conscious was telling that God will definitely help him. Lencho was an ox of a man. Ox of a man means very hard working, like animals in the fields, but still he knew how to write. उसको थोड़ा बहुत लिखना आता था. He was literate, that he could write a letter. The following Sunday at daybreak. Daybreak means the time in the morning when daylight first appears. It is also called dawn time. The evening time is called dusk time, and the morning time is called dawn or daybreak, early morning. He began to write a letter which he himself would carry to town and place in the mail. उसने एक लेटर लिखना चालू किया और जो उसने सोचा वो खुद ही जाके मेल में जाके डाल के आएगा. It was nothing less than a letter to God. What it was? It was that a letter to God. He wrote a letter to God. He believed that God is there and he is going to read the letter. So he wrote a letter. God, he wrote, if you don't help me, my family and I will go hungry this year. What he wrote? God, if you are not going to help me, me and my family are going to hungry. हम भूखे मर जाएंगे. I need 100 pesos in order to sow my field again. Peso is the basic monetary unit of Mexico, several other Latin American countries and Philippines. Peso. Now I need 100 pesos and why I need these 100 pesos? क्योंकि मुझे अपने खेत दोबारा मैं उनको सो करूँगा, उनको दोबारा जोतूँगा और उनमें दोबारा फसल उगाऊँगा. एंड टू लिव अंटिल द क्रॉप कम्स. और जब तक मैं रहूँगा, जिंदा रहूँगा, जब तक मेरी फसलें दोबारा उग जाती हैं. बिकॉज द हेल स्टॉर्म, आप तो जानते हो कि हेल स्टॉर्म ने मेरी फसलें ख़राब कर दी हैं. ही रोट टू गॉड टू ऑन द एनवेल्प. उसने एनवेल्प के ऊपर लिखा. पुट द लेटर इनसाइड एंड स्टिल ट्रबल्ड. उसने लेटर अंदर डाल दिया और फिर भी उसको प्रॉब्लम हो रही थी. वेंट टू टाउन. और फिर वो टाउन चला गया. एट द पोस्ट ऑफिस ही प्लेस्ड अ स्टैम्प ऑन द लेटर एंड ड्रॉप्ड इट इनटू द मेल बॉक्स. पोस्ट ऑफिस में वो लेटर, उसने लेटर के ऊपर स्टैम्प लगाया और फिर उसको मेल बॉक्स के अंदर डालकर चला गया. One of the employees, who was a postman and also helped at the post office, went to his boss laughing heartily and showed in the letter to God. अब जब ये लेटर पोस्ट ऑफिस में पहुंची तो एक जो पोस्टमैन था उसको वो एड्रेस देख के बड़ा अजीब सा लगा, लेटर टू गॉड. वो अपने बॉस के पास गया, पोस्ट मास्टर के पास गया और उसको लेटर दिखाया. उसने कहा देखो ये लेटर आया है, उस पर लिखा है लेटर टू गॉड. Never in his career as a postman had he known that address. उसने कहा कि मैंने अपनी ज़िंदगी में इस तरह का कभी भी कोई एड्रेस नहीं देखा. The postmaster, a fat, amiable fellow, amiable means friendly, pleasant, also broke out laughing. उसको वो भी हंसने लगा देखकर. But almost immediately he turned serious and tapping the letter on his desk, commented, "What faith! It's a very strong faith. That is written a letter to God. I wish I had the faith of the man who wrote the letter, starting up a correspondence with the God." वो कहता है कि काश मेरे पास भी ऐसा फेथ होता है जैसा इस आदमी के पास है कि मैं भी भगवान के साथ कॉरस्पॉन्डेंस चालू कर देता. कॉरस्पॉन्डेंस का मतलब कम्युनिकेशन बाय एक्सचेंजिंग लेटर्स एंड विथ समवन. जब आप किसी को लेटर्स लिखते हैं, इन टर्न यू ऑल्सो गेट अ लेटर, दैट इज़ कॉल्ड कॉरस्पॉन्डेंस. तो मैं भी भगवान के साथ अपना कॉरस्पॉन्डेंस चालू कर देता. So in order not to shake the writer's faith in God, the postmaster came up with an idea. उसको लगा कि इस आदमी को इतना भगवान के अंदर विश्वास है. तो पोस्टमास्टर के पास एक आइडिया आया. उसने सोचा कि मैं इस लेटर का जवाब देता हूँ. बट व्हेन ही ओपनड इट, इट वाज एविडेंट that to answer
इट ही नीडेड समथिंग मोर देन गुड विल। उसके मन में बहुत अच्छा ख्याल आया, वे बहुत उसके मन में कंपैशन फील हुआ उसको कि इस आदमी को इतना भगवान में विश्वास है, तो मैं इसके लेटर का जवाब देता हूँ। गुड विल मीन्स किसी के लिए अच्छी भावनाएं होना, हैव अ गुड फीलिंग्स फॉर समवन। ink and paper, but he stuck to his resolution. He asked for money from his employees. क्योंकि उस लेटर का जवाब देने का मतलब था कि उनको कुछ पैसे भी ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि उसने उस लेटर में पैसे मांग रखे थे भगवान से। रेजोल्यूशन का मतलब स्ट्रॉन्ग विल। ही आस्क्ड फॉर मनी फ्रॉम हिज एम्प्लॉयज, उसने पैसे के लिए अपने एम्प्लॉय से बात की। ही हिमसेल्फ गेव पार्ट ऑफ हिज सैलरी, और अपनी भी सैलरी का उसने कुछ पार्ट देने की सोची। एंड सेवरल फ्रेंड्स ऑफ हिज वर obliged to give something for an act of charity. Obliged means they were also ready to help. Obliged कि हम भी उसकी हेल्प करते हैं और हम भी उसको कुछ पैसे दे देते हैं। एज एन एक्ट ऑफ चैरिटी मीन्स उसको हेल्प करने के लिए। Let's read the story further. Obliged means be grateful. It was impossible for him to gather together the 100 pesos. अब एक साथ 100 pesos इकट्ठे करना थोड़ा सा मुश्किल था। So he was able to send the formal only a little more than half. अब पोस्ट मास्टर के लिए भी 100 pesos इकट्ठे करना, सबसे कोई देता है कोई नहीं देता, तो उसने कहा कि मैं कैसे इतने सारे पैसे इकट्ठे करूं, तो उसने आधे से कुछ ज़्यादा दे दिए। He put the money in an envelope addressed to Lancho and with it letter containing only a single word as a signature got. कितना अच्छा काम किया उन लोगों ने। उन्होंने तो बहुत हेल्प करने की सोची और उन्होंने सचमुच की। उन्होंने उसमें पैसे रख के और लास्ट में सिग्नेचर पे नीचे लिख दिया गॉड का सिग्नेचर करके और उसको पोस्ट कर दिया। The following Sunday, Lancho came a bit earlier than usual to ask if there was a letter for him. अगले संडे लैंचो थोड़ा जल्दी आ गया और उसने आके पूछा कि क्या मेरे लिए कोई लेटर है। It was the postman himself who handed the letter to him while the postmaster experiences